students, how are you? I hope you all are doing good. Children, now we will learn English grammar. Do you know? English grammar is so important for we all. We learn how to make sentences. We learn how to use helping verbs correctly. And in this way, we are able to use correct English language. Let's start English grammar. English grammar, book 4, lesson 1. Sentences. Let's crack. Build sentences from the given words. First one is who. And नीचे पिक्चर बनी है उसमें किसकी है? प्रिंस की. तो who is this? Next, doing है, नीचे पेंटिंग है, तो क्या करेंगे? What is he doing? Next, what is this? Next, where is this castle? Next, आपकी जो पिक्चर्स बनी हुई हैं, who और फिर नीचे mermaid है, तो आप क्या लिखेंगे? Who से क्वेश्चन फ्रेम करेंगे? Who is this? Next, what is he doing? Next, what are they doing? What is this? Where is the ocean? Right? Now sentences. We know that groups of words that make complete sense are called sentences. Example, the boy is reading a book. I have many dresses. I play football. तो जो words आपको complete meaning देते हैं उन्हें कहते हैं sentence. Now remember, a sentence always begins with a capital letter. It makes complete sense. It can end with a full stop, a question mark or an exclamation mark. जो सेंटेंस है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा. एंड में आप उसको फुल स्टॉप से एंड करेंगे या क्वेश्चन मार्क से करेंगे या एक्सक्लेमेशन मार्क से करेंगे. और सेंटेंस आपका सेंसिबल होना चाहिए जिससे आपको कंप्लीट मीनिंग क्लियर हो. काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. अब सेंटेंसेस के कितने प्रकार होते हैं, कितने काइंड्स हैं? There are 5 kinds of sentences. Sentences के 5 प्रकार होते हैं. Number 1, assertive sentence. A sentence that says or states something is called an assertive, declarative. A sentence or a statement. A statement can be either positive or negative. आपका statement positive भी हो सकता है और negative भी हो सकता है. A positive statement कैसा होगा? Examples. I go to school every day. The sun rises in the east. Mr. Suri is a rich merchant. तो ये स्टेटमेंट है, ये आपके पॉजिटिव है. नेक्स्ट आपका नेगेटिव स्टेटमेंट है, he is not tired. आपका not आ गया तो नेगेटिव. The cows are not grazing. Raj will not leave today. Next is interrogative sentence. A sentence that asks a question is called a question or an interrogative sentence. इसमें क्या होगा? Questions पूछे जाएंगे आपसे. Examples, who is knocking at the door? Have you received my letter? Where is the aeroplane? Making questions from statements. अब स्टेटमेंट से क्वेश्चन कैसे बनेंगे देखिए. I am intelligent. तो कैसे बनाएंगे? Am I intelligent? She was sick. Was she sick? He is late. Is he late? He has seen your report card. Has he seen your report card? We put a mark of questions at the end of an interrogative sentence. जो interrogative sentence होगा उसके लास्ट में क्या होगा? इस तरह से क्वेश्चन मार्क होगा. Next, imperative sentence. A sentence that expresses a command, request or advice is called an imperative sentence. जिसमें आपको command होगा, request होगी या advice होगा. Example, go away. Please bring me a glass of water. Revise your lesson in time. तो इसमें क्या है? किसी में command है, किसी में request है, किसी में आपको suggestion दिया गया है.
Exclamatory sentence. A sentence that expresses some strong or sudden feeling is called an exclamatory sentence. आपको इसमें क्या होगा? Sudden feeling. किसी भी चीज़ की आप काम कर रहे हैं, अचानक से आपको कुछ फील होगा, जैसे लॉस करने का या कोई जीतने का, तो वो आपकी सडन फीलिंग होगी. एग्जाम्पल्स: हाउ ब्यूटिफुल द रोजेस, हाउ काइंड ऑफ यू, व्हाट अ सिली मिस्टेक आई मेड. We put a mark of exclamation at the end of an exclamatory sentence. इसमें क्या होगा? आपके लास्ट में वन लाइन नीचे फुल स्टॉप टाइप से होगा, तो वो आपका एक्सक्लेमेशन मार्क है. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आपका एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर होगा. नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस. इट एक्सप्रेसेस अ विश और अ प्रेयर. एग्जाम्पल्स: मे यू लिव लॉन्ग, मे गॉड ब्लेस यू. इसमें क्या किया गया है? अपनी इच्छा, हमारी प्रेयर इसमें शो हो रही है. वी पुट अ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन एट द एंड ऑफ एन ऑप्टेटिव सेंटेंस. नाउ प्रैक्टिस एंड पॉलिश. मैच द फॉलोइंग. अब आपको क्या करना है? सेंटेंसेस को आपस में मैच करना है कि कौन सा स्टेटमेंट है, कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा एक्सक्लेमेशन है. तो पार्ट ए को रीड करके पार्ट बी से आप इसमें मैच करेंगे. जैसे वेयर हैव यू बीन ऑल मॉर्निंग, तो इसमें क्या है? क्वेश्चन मार्क है एंड में, तो ये क्या होगा? हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस. इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन है. तो ऐसे ही आपको 2 to 6 आपको कंप्लीट करने हैं. चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव सेंटेंस. अब जो नीचे सेंटेंसेस गिवन है, आपको नॉट का पुट करके इनको नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है. लुक एट द वर्ड्स इन कलर एंड फ्रेम क्वेश्चंस फॉर दीज सेंटेंसेस. आपको क्या करना है? जो कलरफुल वर्ड्स हैं उनसे आपको क्वेश्चन फ्रेम करना है. जैसे फर्स्ट है द चिल्ड्रन एंजॉय प्लेइंग आउटसाइड. तो आप क्या करेंगे? वेयर डू द चिल्ड्रन एंजॉय प्लेइंग. कहाँ करते हैं? आउटसाइड में. तो ऐसे ही आपको जो 2 to 5 एंड 6, 7, 8 सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है. फ्रेम क्वेश्चंस फॉर दीज स्टेटमेंट्स यूजिंग हेल्पिंग वर्ब्स. आपको हेल्पिंग वर्ब का यूज करके जो नीचे सेंटेंसेस गिवन है उनसे क्या करना है? आपको क्वेश्चंस बनाने हैं. Now change the following sentences into the form as directed in brackets. One has been done for you. तो ब्रैकेट में जिस ढंग से आपको डायरेक्ट किया गया है उस तरह से आप सेंटेंस को फ्रेम करेंगे. जैसे फर्स्ट है आपका माई फ्रेंड इज ऑलवेज फेयर. तो आपको इसका क्या बनाना है? क्वेश्चन बनाना है. तो कैसे करेंगे? इज माई फ्रेंड ऑलवेज फेयर. और लास्ट में क्वेश्चन इंटरोगेशन मार्क आप पुट करेंगे. तो इसी तरह से आपको 2 to 8 क्वेश्चंस में जिस तरह से आपको डायरेक्ट किया गया है आपको सेम वैसे ही करना है. नाउ फन कॉर्नर. मेक अ सेंटेंस. लिस्ट 5 एडजेक्टिव्स. तो यहां आपको क्या करना है? 5 एडजेक्टिव्स देने हैं. लिस्ट 5 nouns. यहां आपको 5 nouns देने हैं. लिस्ट 5 verbs. और यहां आपको 5 verbs देने हैं. तो आप इसको देंगे. Make 5 sentences using 1 adjective, 1 noun and 1 verb from the above list in each of the sentence. अब आपको क्या करने हैं? 5 सेंटेंस बनाने हैं जिसमें आपको एडजेक्टिव, नाउन और वर्ब का यूज करना है जो आपने ऊपर लिखे हैं. तो आप इसको करेंगे. कहां से कहां तक करेंगे? 1, 2, 3, 4, 5 सेंटेंसेस तक. तो आप इसे कंप्लीट करेंगे. अब नाउ आई होप यू हैव अंडरस्टूड how to use English grammar correctly. Now, what do you have to do? You have to practice all the time.